Hello viewers, I welcome you all to the today's session of a 1 week long FDP organized by Chintamani Mahavidyalaya Ghugus. Today we are going to learn something about open education and open educational resources and how we can use them for our purpose. So before going towards open educational resource or any discussion related to it, we need to understand what basically an open education is. If you look at the definition, typical definition of an open education, it is something like any educational practice where a knowledge of any kind is freely shareable using an online technology is an open education. किसी भी तरह का मटेरियल, किसी भी तरह का कोर्सवेयर, किसी भी तरह का रिटन मटेरियल, पीडीएफ, स्लाइड, कुछ भी जो फ्रीली शेयरेबल हो उसे हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कह सकते हैं. ठीक है, और ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है इट इज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया. बट इन जनरल सेंस वी कैन से दैट कि any kind of material that is available freely for sharing purpose or reuse purpose or even modification purpose is an open educational resource. Is it okay? Now, if you see what open education includes, so here is a brief description of something that is included under open education. In various boxes you can see the main things that are included under open education. First is content authoring, access and delivery, then shared learning, then easy access to scholarly work, then creation of courses for masses, and finally permission to reuse through open licensing. Like content authoring, एक्सेस एंड डिलीवरी की बात करें तो विकीपीडिया इज द बेस्ट ओपन एजुकेशनल रिसोर्स. देन शेयर्ड लर्निंग की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ OERs आर अवेलेबल लाइक OER कॉमन्स के बाद ओपन कोर्स फेयर्स, ओपन टेक्स्ट बुक्स. देन स्कॉलरी आर्टिकल्स की बात करें तो देयर आर वेरियस रिपोजिटरीज एंड ओपन एक्सेस जर्नल्स थ्रू विच वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन टू what we need. Then creation of courses for masses, you already know this, I think, MOOCs, SWAYAM and all these are what open educational resource where courses can be created and distributed in masses. Then open licensing concept is there which permits us to reuse someone's work accordingly. Like for example, the best possible example we can give is Creative Commons. We will explain it further, but you see this is what something which tells you what open education basically includes. It includes content authoring and access, shared learning, easy access to scholarly work, creation of courses for masses, and permission to reuse through open licensing. Is it okay? Now here are some key aspects that we are going to discuss or we are going to learn in our further discussion. Let's have a look at it, what we need to understand basically through this session. First thing is to understand OER and Creative Commons license because they are inseparable. OER, that is open educational resource, and Creative Commons licensing is the thing that we are going to discuss. Then how to find the relevant OER. That means the OER or a resource that is relevant to you, and use of OER in teaching and learning, like how some OER that is obtained by us can be used for our purpose of teaching and learning. So these are the key aspects that we are going to address in upcoming session. Then to typically see what is open educational resource. So here is the definition that you can see कि open educational resource is any resource, as I said, any resource like a course material, or a textbook, a ebook, what you say, or some software like OBS or OpenShot, or videos like you see some videos on YouTube, many of them are OER resources. Then some PowerPoint presentation like you see in SlideShare.
then some podcast like a downloadable audio file of some type. All these are the open educational resources if they are available freely to share and use. Okay, this is not my definition, this is a definition of OER given by UNESCO. Okay, then in simple terms, if we want to define OER, then it is any kind of educational material which is freely present in some public domain under open license, which permits use and reuse of that material by others. Okay, resource can be any. Like I said, it can be video, it can be text, it can be textbook, it can be audio file, it can be course material, anything, right? So it's not about type of resource कि वो क्या है, it's always about how it is licensed to use. मतलब कोई रिसोर्स अगर इंटरनेट पर अवेलेबल है तो उसका मतलब ये नहीं है जो कि हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी इमेज को उठा के यूज कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग. ओके, यू कैन यूज सम रिसोर्स विदाउट परमिशन only if it is in public domain, but if it is licensed then you need to see what kind of licensing is associated with the resource or material that is available on the internet. If it is licensed in an open manner, then you can use it according to terms of license. If it is available in public domain, then you can use it without any citation. But if it is copyrighted, you need to take the permission from the original creator for using that work, है ना. तो ये सारी चीजें देखने के बाद हम किसी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं. तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का मतलब ही ये है कि इट इज अवेलेबल फॉर यूज, ओके, रीयूज एंड मॉडिफिकेशन इन एन ओपन मैनर. ओके, नाउ अगर थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स की तरफ ध्यान दें हम, ओके, तो यहाँ पे OER से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन्ड है. जैसे कि आप देख सकते हो, OER provides increased access to quality education. First thing that you see is it provides increased access to quality education. It can solve the problem of spending money on textbooks. You know that there are many people or many students around the world who don't buy textbooks just because of its cost. So if textbooks are made available in an e-book form, in a free manner or an open manner, then it will be a most beneficial thing for the students. So that's how OER work. It can save lot of money that is spent on textbook. Then it provides students with multiple options to choose from that will enhance knowledge and performance. ठीक है ना. OER जो ओपन रिसोर्सेस है उन्हें स्टूडेंट्स फ्रीली यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जिस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं उस स्ट्रीम के अलावा भी अगर कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिनकी वजह से उनका नॉलेज बेस एनहांस होगा, परफॉर्मेंस एनहांस होगा, क्योंकि सिलेबस से जुड़ी हुई बट सिलेबस में नहीं है ऐसी भी चीजें वो स्टूडेंट्स OER के थ्रू पढ़ सकते हैं. देन हेल्प्स फैकल्टी मेंबर्स फॉर कंटेंट डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स का ही नहीं, फैकल्टी का भी फायदा है, क्योंकि फैकल्टी को भी OERs के थ्रू अपना कंटेंट डेवलपमेंट करने में हेल्प मिलती है. कोई रिसर्च पेपर हो या फिर कोई सिलेबस की फ्रेमिंग हो, ऐसी कई चीज़ें फैकल्टी भी इस्तेमाल कर सकती है थ्रू सम OERs. देन it can change the concept of typical learning and teaching, where learning can be more inclusive and collaborative. Because we can use the OERs of different types along with our typical syllabus, तो जो स्टडीज है, जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा कोलैबोरेटिव और ज़्यादा एक्सटेंसिव बन सकता है इफ़ यू यूज OER. सो आई थिंक दिस आर सम बेसिक बेनिफिट्स ऑफ नोइंग एंड यूजिंग OERs. ओके, देन OER जैसे कि हमने कहा कि OER कैन बी एनीथिंग, राइट फ्रॉम द टेक्स्ट टू वीडियोज टू मटेरियल्स टू पॉडकास्ट, एनीथिंग. तो फिर हमको पता तो होना चाहिए ना कि भाई अगर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट बुक या ई बुक हमको OER के फॉर्म में चाहिए, तो व्हाट इज द रिसोर्स अवेलेबल और व्हाट इज द साइट और वेबसाइट वेयर वी कैन सर्च फॉर बुक्स. सो हियर आर सम एग्जांपल्स आई हैव टेकन. Some important OERs for textbooks. Okay, the most commonly known is OpenStax. Okay,
So if you go to OpenStax, as I'm going here, you can see, okay, I think there is some problem in connectivity. So OpenStax, let's have a look later. OpenStax, as you can see, is run by Rice University, which is a non-profit organization. As you can see कि Rice University एक non-profit organization है जो OpenStax को चलाती है. Is it okay? And why it runs it? Because it's an 100% open license OER platform where we can find hundreds of pre-books and peer-reviewed textbooks for various subjects free of cost. See, okay, what you need is an internet connection, that's all, and a basic tool like mobile or computer. You can go to openstax.com, okay, and you will see that there are hundreds of books available to use, okay, free of cost. Then here you see OpenStax is opening. It will take some time. So this is what homepage of OpenStax looks like. Okay, here you can see that there are subject wise books available. You can search amongst them and you can use them, download them according to your need. Okay, then according to the data provided on their website or OpenStax website, there are around 3 million students across the world which are using OpenStax collection, and through it they are saving a lot of money. Okay, there are certain Indian institutes, I have especially taken them, which uses OpenStax collection or adapts OpenStax collection in their curriculum. They are like Indian Institute of Technology Gandhinagar, IIT Bombay, and ISI, that is Indian Statistical Institute. These are the examples of certain Indian institutes who have adopted the textbook material from OpenStax in their curriculum. Okay, so if we want, we can also do that in future. Some other example, if we see, then there is Project Gutenberg. Okay, it is like also OpenStax. It is also a kind of what you say, an open educational resource for textbooks where you can find thousands of textbooks related to different subjects. Okay, so that's how it works. It was what the open educational resource related to your textbooks. Now if you see, this is what Project Gutenberg homepage. Here also you can have many books that you can download, use for your content creation and reading purpose or any other thing. Okay, then if we go further, this is another OER, that is OpenCourseware. इससे पहले का जो OER था वो टेक्स्ट बुक के लिए था. This is an OER for courseware. What is courseware? So you see कि OCW or OpenCourseware is something which is free and open digital publication of high quality college and university level educational material. These materials are organized as courses, OpenCourseware, and free and openly licensed, accessible to everyone anytime via internet. The best or the well-known courseware, if you see, is a courseware developed by MIT. Okay, there are several other coursewares available which are in India also, but I am just showing it for example. This is the home page of MIT OpenCourseware, where you can select amongst different coursewares and get enrolled into it. That's what, and it is open for all. Okay, what you need, again I am saying, what you need is just a basic necessity is to have a very good internet connection and basic tool like mobile or tablet or computer, whatever. Okay, you can access these coursewares anytime, anywhere. Okay, then third thing as an OER is open online courses. Okay, these are the courses, like we have courses in our colleges. These are the courses which are online and available for everyone to enroll, through which individuals can learn different type of skills in affordable and flexible manner, means whenever he or she wants, at a very affordable cost or many a times free of cost.
I have taken an example here which are known to most of us, okay, of open online courses. Like there are NPTEL courses. NPTEL is something which is developed by 7 IITs and an IISc, Indian Institute of Sciences, Bangalore. इन्होंने मिलके इस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म को बनाया है, NPTEL को. इसका जो होम पेज है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं. ओके, सो it looks something like this. If you see, this is a home page of NPTEL where you can have access to different type of courses and resources, okay, in free of cost or either in affordable manner. As you can see, it is developed by IITs and an IISc. Okay, this is a very good Indian OER available on the web. Okay, then after these three types of OERs that we described, like text के लिए OpenStax, courseware के लिए MIT या और भी कुछ है, then open online courses के लिए NPTEL हो गया, स्वयं हो गया, एग्रीकल्चरल मूक्स या AG मूक्स हो गया, edX हो गया, ये सारे क्या है, प्लेटफॉर्म्स है फॉर ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. ओके, ये एक लिस्ट है आपके सामने जहाँ पे ओवरऑल सभी मतलब मेजर OER सोर्सेस को एनलिस्ट किया है. आप देखो, ओपन एजुकेशनल कंसोर्टियम है, OER कॉमन्स है, ये भी एक बहुत अच्छा एजुकेशनल रिसोर्स है ओपन वाला. ओपन स्टैक्स है, टेक्स्ट बुक के लिए ओपन टेक्स्ट बुक है. उसके बाद आपका ये बाकी सब जो आप देख सकते हो, ये सभी एक चीज़ के लिए कॉमन है कि दे आर ऑल OERs, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, through which you can access books, you can access courseware, you can access courses, you can access videos, you can access podcasts, different things. Okay, then Indian OERs की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं. तो आप देखिए, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि here is NPTEL, one of the OER for online courses. Okay, then this is another very crucial important courseware, not courseware, OER, that is virtual labs. Okay, it is a run by Ministry of Human Resource and it provide access to labs in science and engineering where through videos you can have access to different types of experiments that are going on in the laboratories of different types, and it's Ministry of Human Resource initiative, so it's a very big thing. Then Swayam, this is known to most of us that it is a platform initiated by Government of India and it is particularly designed for giving access, equity and quality. Okay, that are the three pillars of our educational policy. उसको पूरा करने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म बनाया गया है. दुनिया भर के कोर्सेस स्वयं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. तो इट्स अ वेरी गुड OER, Indian OER. Then there is another very important thing for us as we are higher education faculty. There is another OER available for us. It is EPG Pathshala. Okay, if you see, it will take some time as always. Okay, the EPG Pathshala is something, it is an initiative of again MHRD under its national mission of education. Okay, its site something looks like this. Okay, see, this is a home page for EPG Pathshala. Okay, where you can have access to what, just get the tagline. EPG Pathshala is an initiative of MHRD under its national mission on educational through ICT and it is being executed by UGC. So I think it is the most useful OER for we people as a faculty of higher education. Okay, you must have a look at this OER. Okay, after we end with this session, EPG Pathshala. Okay, if you just type these things in Google, you will get access to them. So what it provides is, it provides e-content in 71 subjects at PG level. It's not a small thing. Okay, 71 सब्जेक्ट्स का ई कंटेंट EPG पाठशाला पे अवेलेबल है. वर्चुअल लैब्स पे डिफरेंट स्ट्रीम्स के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस अवेलेबल है. स्वयं पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेस अवेलेबल है. NPTEL पे अलग अलग टाइप के कोर्सेस अवेलेबल है. इतना ही नहीं तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं. ऑल दीज आर इंडियन कोर्सेस विच आर OERs, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. साक्षात हो गया,
NCERT हो गया, फ्लेक्सीलर्न हो गया, ज्ञानकोश हो गया। अलग अलग लेवल्स के टीचर्स और लर्नर्स के लिए अलग अलग OERs वेब पे अवेलेबल है। ठीक है, हम अगर सर्च करेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत बेनिफिट्स उसके ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ टीचर्स किसी भी तरह के OER का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एज यू कैन सी इट इज reuse of OERs by teachers. How they can use OERs? So see one by one. Okay, by integrating some OER in existing course. आपके existing course में कोई relevant OER incorporate करके, या फिर अवेलेबल मटेरियल को मॉडिफाई करके, OER का इस्तेमाल करके अवेलेबल मटेरियल को चेंज करना या उसे ज़्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए। उसके बाद OER का यूज करके एक कंप्लीटली न्यू मटेरियल बना सकते हैं, या फिर नया कोर्स डिजाइन किया जा सकता है बाय रीयूजिंग सम काइंड ऑफ OER और रीपर्पजिंग सम काइंड ऑफ OER, राइट। देन गिव सम OER एज एन असाइनमेंट टू स्टूडेंट। जैसे आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस में अवेलेबल कोई वीडियो देखो और उस पर बेस्ड कोई टेस्ट या कोई असाइनमेंट या क्विज कंडक्ट किया जा सकता है। लाइक you can, this is the thing, give some OER as an assignment to your student, and it is helpful in developing courses on platform like Moodle। मतलब Moodle जैसे प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको पता हो, अब वो हमारे यहाँ पे डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, बट अगर आप Moodle जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स डेवलप करना चाहते हो तो उसमें भी अलग अलग तरह के OERs आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, how to decide whether a source is OER or not, right? Whenever you type something in Google, you came across variety of things, okay? So उसमें से कौन सी चीज़, मतलब इमेज है तो कौन सी इमेज, टेक्स्ट है तो कौन सा टेक्स्ट, PDF है तो कौन सा PDF, या फिर स्लाइड का मतलब प्रेजेंटेशन है तो कौन सा प्रेजेंटेशन OER है या नहीं है? How to decide? This is a very important question. So answer to it is Creative Commons licensing. This is a very crucial and important fact to understand when we are discussing OERs, as I said initially also. Okay, OER जब हम डिस्कस करते हैं तो Creative Commons को हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम फिर से लेगा ये। ओके, creativecommons.org ये साइट का नाम है। ओके, व्हाट इट सेज, सी ओपन एक्सेस मैटर्स स्पेशली दिस, जस्ट लीव दिस, व्हाट इज CC और क्रिएटिव कॉमन्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ओके, इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ओके, जो क्या करती है, हियर यू सी दिस, Creative Commons license is a public copyright license which enable the free distribution of otherwise copyrighted work। ठीक, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। देखिए ये 3 सिंबल्स आपको दिख रहे हैं किसी भी ऑनलाइन मटेरियल पे या उसकी लाइसेंस डीड पे, इन 3 में से एक चीज होगी। एक है पब्लिक डोमेन PD, या इसका सिंबल इस पे क्रॉस मार्कर भी हो सकता है। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कि वो मटेरियल पब्लिक डोमेन में है, मतलब उसको कोई भी फ्रीली एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, बांट भी सकता है विदाउट एनी परमिशन, बिकॉज इट इज इन पब्लिक डोमेन। Okay, so no need of any permission or attribution for anyone citation. But अगर ये सिंबल है C तो इसका मतलब होता है, देखो कॉपीराइट, मतलब ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया है बाय मिस्टेक, जस्ट हैव अ लॉजिक। कॉपीराइट यहाँ होना चाहिए, क्रिएटिव कॉमन्स यहाँ, तो यहाँ कॉपीराइट कंसिडर करो। तो कॉपीराइट का मतलब होता है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, सभी राइट्स रिजर्व्ड। तो ऑथर की परमिशन के बिना आप उस मटेरियल का इस्तेमाल किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई लाइसेंसिंग किसी डॉक्यूमेंट की या मटेरियल की, स्लाइड की, वीडियो की क्रिएटिव कॉमन्स है,
क्रिएटिव कॉमन्स मतलब सीसी लाइसेंसिंग अगर है तो ऑल की जगह सम राइट्स रिजर्व्ड उसका मतलब होता है। ओके, सम राइट्स रिजर्व का मतलब जैसे ये सीसी है ना, ये सिंबल अगर है तो इसका मतलब है सम राइट्स रिजर्व्ड, इसका मतलब है ऑल राइट्स रिजर्व्ड एंड इसका मतलब है नो राइट्स रिजर्व्ड। तो नो राइट्स रिजर्व यू कैन यूज विदाउट परमिशन एंड एट्रीब्यूशन। Creative copyright you cannot use without permission, attribution or citation. Creative Commons is something where you can use the material, okay, in more flexible manner than copyright and somewhat less flexible than public domain. तो उसके लिए कि भाई कौन से तरह का क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या अलाउ करता है या किस तरह से मटेरियल का इस्तेमाल अलाउ करता है, उस पे डिपेंड करेगा कि हम उस मटेरियल को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को यूज करने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग को समझना जरूरी है। ओके, क्योंकि कोई ओपन एजुकेशनल रिसोर्स किस तरह की क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग से बंधा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि उस ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वही डिस्कशन हम आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग के इम्पॉर्टेंट या सैलिएंट फीचर्स पे। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देख रखी है कि इट इज़ अ पब्लिक कॉपीराइट लाइसेंस विच एनेबल द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदरवाइज कॉपीराइटेड वर्क। Then Creative Commons license is used when an creator or author wants to authorize his or her work for using, sharing and even modifying or remixing by others। जब कोई ऑथर या क्रिएटर अपने कंटेंट का यूज या शेयरिंग या रिमिक्सिंग करवाना चाहता है लोगों के द्वारा, तब वो अपने मटेरियल के लिए कौन से लाइसेंसिंग का इस्तेमाल करता है, क्रिएटिव कॉमन्स। अगर वो नहीं करवाना चाहता तो कॉपीराइटेड करेगा, ठीक है ना। अगर खुद का एट्रीब्यूशन रख के लोगों को इस्तेमाल करने लायक मटेरियल कोई अपना रखना चाहता है तो वो अपनी लाइसेंसिंग कौन सी लेगा मटेरियल के लिए, क्रिएटिव कॉमन्स। ओके, क्रिएटिव कॉमन्स गिव्स ऑथर और क्रिएटर अ फ्लेक्सिबिलिटी or choice to decide whether to allow use of his or her work commercially or non-commercially। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग के जरिए कोई ऑथर या क्रिएटर अपना मटेरियल कमर्शियली यूज करना है या नहीं करना ये डिसाइड कर सकता है। देन अलग अलग पर्पस पे बेस्ड, मतलब किसी को लगता है कि मेरा मटेरियल यूज होना चाहिए लेकिन शेयर नहीं होना चाहिए, किसी को लगता है कि मेरा मटेरियल शेयर होना चाहिए लेकिन सिमिलर लाइसेंस के अंडर शेयर होना चाहिए, किसी को लगता है कि मेरा मटेरियल यूज हुआ तो चलेगा, नॉन कमर्शियली होना चाहिए, किसी को लगता है कि मेरा मटेरियल नॉन कमर्शियली यूज हुआ तो चलेगा, रीयूज हुआ तो चलेगा, लेकिन उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ऑथर या क्रिएटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस चूज कर सकता है। इज इट ओके? दैट्स द ब्यूटी अबाउट सीसी लाइसेंसिंग। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, रेड वाले में देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस दैट गिव डिफरेंट राइट्स टू यूज द मटेरियल। ओके, देन CC license retain copyright of the original creator while permitting others to use, copy or even remix the material। मतलब अगर हमने कोई OER जिसको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग लगा हुआ है वो यूज किया तो हम उसे यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और इवन कुछ केसेस में उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी हम ऐसा कोई मटेरियल यूज करेंगे जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग से लाइसेंस्ड है तो हमें मेन क्रिएटर या ऑथर को हमेशा एट्रीब्यूट करना होता है। कॉपीराइटेड मटेरियल में आप एट्रीब्यूशन देकर भी उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑथर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप यूज करेंगे आपको ऑथर को एट्रीब्यूट जरूर करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, राइट? देन
एंश्योर लाइसेंसर्स और क्रिएटर अ क्रेडिट दैट दे डिजर्व, क्योंकि यहाँ पे हम भले ही मटेरियल विदाउट परमिशन यूज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमको ऑथर या क्रिएटर को एट्रीब्यूट करना है, तो ऑथर को भी अपना ड्यू क्रेडिट मिल जाता है और लोगों को भी, जिसको भी चाहिए, स्टूडेंट हो या टीचर हो, उसको वो मटेरियल यूज करने के लिए मिल जाता है लाइसेंसिंग के हिसाब से। सिर्फ यूज नहीं तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, या फिर कभी कभी इवन उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। अब वो टाइप ऑफ लाइसेंस पे डिपेंड करेगा, जो हम आगे देखेंगे। देन वही बताया है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू लाइसेंसिंग, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का टाइपिंग, एन ऑथर कैन डिजर्व सम राइट्स व्हाइल ऑब्टेनिंग लाइसेंस, जैसे कि राइट टू रिटेन द ओरिजिनल थिंग, मीन्स नॉट अलाउइंग द मॉडिफिकेशन, और राइट टू यूज the material non-commercially or prohibiting commercial use of the material. So these are some rights that an author or creator can reserve while obtaining a CC license. Is it okay? Now, these are what something creative, or you can say 5 R's of Creative Commons license. मतलब Creative Commons license अपने मटेरियल या किसी OER के लिए ऑब्टेन करके कौन सी चीजें अचीव की जा सकती है। रिटेन द राइट टू मेक एंड कंट्रोल द कॉपीज ऑफ कंटेंट, मीन्स वो डाउनलोडेबल होगी कि नहीं, स्टोर हो पाएगी कि नहीं। देन रिमिक्स, मतलब वो मॉडिफाई हो पाएंगी कि नहीं। राइट टू कंबाइन ओरिजिनल और रिवाइज्ड कंटेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग द वीडियो विथ सम स्लाइड टेकन फ्रॉम OER। ओके, मतलब किसी और की स्लाइड का इस्तेमाल करके अगर हमने वीडियो बनाया, तो जिस स्लाइड का आपने इस्तेमाल किया वो स्लाइड में लाइसेंसिंग में क्या अलाउड होना चाहिए, रिमिक्सिंग और मॉडिफिकेशन, है ना। देन रीडिस्ट्रीब्यूट, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द ओरिजिनल, रिवाइज्ड और रिमिक्स्ड कंटेंट, मतलब जो ऑथर है वो आपको उस मटेरियल को एज एन ओरिजिनल और मॉडिफाइड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ करता है क्या। देन रिवाइज, मतलब राइट टू अडॉप्ट एंड अल्टर द कंटेंट, मतलब जैसे किसी इंग्लिश डॉक्यूमेंट को हमने डाउनलोड किया और उसको हमने कन्वर्ट किया मराठी में या किसी और लैंग्वेज में, दैट इज व्हाट राइट टू अडॉप्ट एंड अल्टर द कंटेंट। देन रीयूज, मतलब राइट टू यूज द कंटेंट इन डिफरेंट वेज, जैसे हमने यूट्यूब का कोई वीडियो उठाया और उसे क्लासरूम में दिखाया, तो ये तो हम आसानी से करते हैं, बट बेसिकली वही यूट्यूब का वीडियो हमको हमारे क्लासरूम में या PPT में डालना चाहिए जो लाइसेंसिंग के थ्रू अलाउड हो, है ना। कॉपीराइटेड वीडियो हम यूज नहीं कर सकते लीगली, अगर वो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग के थ्रू लाइसेंस्ड है तो लाइसेंसिंग के टर्म्स के हिसाब से हम उसे यूज कर सकते हैं, कभी कभी कंबाइन कर सकते हैं, कभी कभी रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइप ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग हमको देखनी पड़ेगी उस वीडियो की। जैसे आप YouTube पे जाओ अगर, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाउ टू सी द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग फॉर एन YouTube वीडियो और फॉर सम टेक्स्ट। ओके, और उसके बाद ही वो OER है कि नहीं ये समझेगा, और उसके बाद ही हम उस हिसाब से उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई वाज सेइंग कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के कई प्रकार है, और लाइसेंस के प्रकार पे डिपेंड करता है कि हम उस मटेरियल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है कुछ कॉमन सिंबल्स जो आपको किसी वीडियो, किसी डॉक्यूमेंट, किसी स्लाइड या किसी और पॉडकास्ट पे जो वेब पर अवेलेबल है उस पे दिखेंगे। ओके, दिस इज CC which is common in all. This CC stands for Creative Commons, and this by is also common. So understand this thing first. CC का मतलब होता है क्रिएटिव कॉमन्स, बाय का मतलब होता है ओरिजिनल, क्रिएटर और ऑथर। तो देखिए, इसीलिए इधर आप देखोगे तो CC और बाय हर तरह के लाइसेंस में है। मतलब ये कि किसी भी तरह का मटेरियल जो इनमें से किसी भी तरह के क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग के थ्रू लाइसेंस्ड हो,
एक बात तो आपको करनी ही करनी है, जब भी आप उस मटेरियल को किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, आपको उस मटेरियल के यूज करने के लिए ऑथर को एट्रीब्यूट करना ही है। बाय इज इन एवरी लाइसेंस मीन्स you have to attribute, you have to give credit to the original author or creator, okay, who have created or authored that work. This is compulsory in all Creative Commons licenses, but for that you need not to take the permission of the author. You just use that material, cite or give the attribution to the author, that's it. But these are 6 types of licenses, where different thing is the third aspect. As you see, first is just CC by, this is CC by SA, मतलब attribution CC by and share alike. This is NC means non commercial, no derivatives मतलब ND, non commercial share alike मतलब NC SA, non commercial no derivative मतलब NC ND. अब इसका मतलब क्या है ये समझो। जब आता है CC बाय, ऐसा लाइसेंस अगर किसी मटेरियल पे है तो उसको आपको सिर्फ ऑथर को एट्रीब्यूट करना है, बाकी उस मटेरियल को आप रीयूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिकम्बाइन कर सकते हो, ठीक। अगर ये वाला एट्रीब्यूशन है शेयर अलाइक वाला, तो देखो इधर सारे मतलब हमने समझाए हैं। शेयर अलाइक वाला अगर एट्रीब्यूशन है तो इसमें भी आप उस मटेरियल को यूज कर सकते हो, रिकम्बाइन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन ओनली अंडर द सेम लाइसेंस, दैट्स वाई शेयर अलाइक, ओके, मतलब आपका भी लाइसेंस आपको यही वाला रखना होगा, ठीक। देन तीसरा है NC, ये तो कॉमन है ही, CC बाय NC। NC का मतलब नॉन कमर्शियल, मतलब आप किसी मटेरियल का लाइसेंस अगर इस तरह का है क्रिएटिव कॉमन्स वाला NC टाइप का, तो उस मटेरियल का इस्तेमाल आप कमर्शियल पर्पस के लिए, पैसे कमाने वाले पर्पस के लिए नहीं कर सकते, एजुकेशनल पर्पस के लिए बिल्कुल कर सकते हो। देन ND अगर ये ऑप्शन है तो इसका मतलब है नॉन डेरिवेटिव, मतलब उस मटेरियल को आप रीयूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं ला सकते, उसे कंबाइन किसी और चीज के साथ नहीं कर सकते, एज इट इज फॉर्म में आपको वो यूज करना पड़ेगा। देन CC बाय NCSA मतलब नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और सिर्फ सिमिलर लाइसेंस के अंडर यूज किया जा सकता है। शेयर अलाइक मतलब सिमिलर, ये देखो लाइसेंस आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ओरिजिनल वर्क, ऐसे का मतलब। देन NCND का मतलब ना आप उस मटेरियल को चेंज कर सकते हो, ना उसे रिकम्बाइन कर सकते हो, और ना उसे आप कमर्शियली यूज कर सकते हो। इसलिए NC नॉन कमर्शियल नो डेरिवेटिव का मतलब हियर लाइसेंस्ड मटेरियल कैन बी रीयूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉन कमर्शियली एंड विदाउट एनी चेंज। एंड इन ऑल दीज 6 लाइसेंसेस, चाहे वो CC बाय हो, CC बाय SA हो, CC बाय NC हो, CC बाय ND हो, CC बाय NCNA हो या और नीचे वाला हो, इनमें से हर एक में आपको एक काम कॉमन करना ही करना है, वो ये कि जो ओरिजिनल ऑथर है उसे साइट करना होगा या एट्रीब्यूट करना होगा, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसे। इज इट ओके? देन ये रही आपकी लिस्ट, जिसमें आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड से सबसे ज्यादा ओपनली यूजेबल क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस कौन सा है। तो ये रहा CCO मतलब पब्लिक डोमेन, यूजेबल बाय एवरीवन इन एनी मैनर। दिस इज बाय, CC के साथ बाय अगर है इसका मतलब है कि ये यूज किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, रिमिक्स किया जा सकता है, सिर्फ ऑथर को एट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पे ऑथर को भी एट्रीब्यूट करना होगा और सिमिलर लाइसेंस के अंडर ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बाय ऐसे। इधर बाय ND मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, बट डेरिवेटाइज नहीं किया जा सकता। इधर नॉन कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, नॉन कमर्शियली इस्तेमाल किया जा सकता है, कमर्शियली नहीं।
इधर नॉन कमर्शियल इस्तेमाल के साथ साथ सिर्फ सिमिलर लाइसेंसिंग के अंडर ही शेयर किया जा सकता है, और यहाँ पे नॉन कमर्शियल के साथ साथ उसमें किसी भी तरह का चेंज भी नहीं लाया जा सकता। अब देखो NC ND और सिर्फ ND में क्या फ़र्क है। सिर्फ ND अगर है तो आप इस मटेरियल का कमर्शियली इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसी फॉर्म में डेरिवेशन या डेरिवेटाइज या चेंज नहीं लाया जा सकता। इधर सबसे नीचे वाले में ना चेंज लाया जा सकता है ना कमर्शियली यूज किया जा सकता है। तो ये जो नीचे से ऊपर आप जाओगे तो लीस्ट ओपनली यूज्ड टू मोस्ट ओपनली यूज्ड लाइसेंसेस दिखेंगे आपको, ये इसका मतलब है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू फाइंड OER। हमने कुछ एग्जांपल्स पीछे देखे, जैसे कि ओपन स्टैक्स हो गया, MIT कोर्सवेयर हो गया, NPTEL हो गया, स्वयं हो गया, ये प्लेटफॉर्म्स तो है, बट हाउ टू फाइंड OER में थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम यहाँ ले रहे हैं। जैसे कि पहला है टेक्स्ट, ओके, मतलब कोई रिटन मटेरियल, ओके। तो आप देखो क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखा है, जस्ट गो टू गूगल, बट नॉर्मल गूगल नहीं। नॉर्मल गूगल जब हम करते हैं तो हर तरह का रिसोर्स हमारे सामने दिख जाता है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लिंक जो आपको दिख रही है उसको टाइप करेंगे, दैट इज google.com एडवांस्ड सर्च, ओके। तो एडवांस्ड सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद हमको क्या दिखेगा कि एडवांस्ड सर्च करने से हमको एक विंडो खुलेगी जहां हमको दिखेगा ऑल दीज वर्ड बॉक्स, ओके। ऑल दीज वर्ड बॉक्स वाले बॉक्स में हम टाइप करेंगे जो भी हमको चाहिए या सर्च करना है। जैसे आपको सर्च करना है एक आध टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोरोना सिम्टम्स फॉर एग्जांपल, तो आपने उस एडवांस सर्च खोलने के बाद जो ऑल दीज वर्ड्स वाला बॉक्स है उसमें ये टाइप किया, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा एक और हेड जिसमें लिखा होगा यूजेज राइट्स। आप उसमें टाइप करेंगे या क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा जिसमें आपको अलग अलग तरह के क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के टाइप्स दिखेंगे। मतलब आपको किस तरह के क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाला मटेरियल चाहिए, मतलब जो रीयूज, रिमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या जो सिर्फ रीयूज हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लेकिन क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफाई नहीं हो सकता, या फिर रीयूज हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है लेकिन नॉन कमर्शियली हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस उधर आपको दिखेंगे, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए और एडवांस सर्च करेंगे तो आपके सामने सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो आपके लाइसेंस के हिसाब से है, ठीक है ना। तो उसमें से कोई भी चीज़ आप चूज करेंगे, कोई भी टेक्स्ट आप चूज करेंगे तो आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द बेनिफिट ऑफ एडवांस्ड सर्च, okay, that you can do through Google, okay. Similarly, if you want to do it for image, किसी तरह की इमेज आपको सर्च करनी है, चाहे आपको कोई इमेज अपने प्रेजेंटेशन में लगानी है, तो वो अगर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स वाली होनी चाहिए ऐसा लगता है तो आप फ्लिकर इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, www.flickr.com। ये एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है इमेजेस के लिए। तो यहाँ पे आप जाके फिर से वही कर सकते हैं कि CC लाइसेंस चेक कीजिए इमेज का, ओके। उसके बाद जो विंडो खुलेगा उसमें अपने इमेज से रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप कीजिए और जो भी इमेजेस आपके सामने आएंगी वो पर्टिकुलर CC लाइसेंस के हिसाब से आएंगी। उसमें से कोई भी इमेज डाउनलोड करके, जो कि अलग अलग साइज ऑप्शंस में आपको अवेलेबल मिलेंगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। देन अगर आपको गूगल के थ्रू इमेजेस को सर्च करना है, ऐसी इमेजेस को जो OER है, ओपन रिसोर्स है, ठीक है, तो फिर से आप वही काम कीजिए जो टेक्स्ट के लिए किया था, लेकिन एडवांस्ड इमेज सर्च नाम से, ओके, google.com/advanced image search, फिर से वही चीज़ खुलेगी लेकिन इस बार टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह इमेजेस ओपन होंगी और CC लाइसेंस या क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस जो भी हमने सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से इमेजेस खुलेंगी। मतलब ऐसी इमेजेस जो सिर्फ रीयूज की जा सकती है,
ऐसी इमेजेस जो रीयूज करने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी की जा सकती है, ऐसी इमेजेस जो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ हम रिकम्बाइन भी कर सकते हैं। लाइसेंस के हिसाब से तय होगा कि वो इमेज कैसे यूज की जा सकती है। तो ये आप एडवांस्ड इमेज सर्च में जाके कर सकते हो। देन वीडियोस अगर आप सर्च करना चाहो तो वीडियोस में आप यूट्यूब या वीमियो ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ जाके हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस टाइप के वीडियोस या फिर ओपन वीडियोस जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऐसे वीडियोस सर्च कर पाएंगे। व्हाट यू नीड टू डू इन यूट्यूब इज जस्ट गो टू यूट्यूब, ओके, सर्च फॉर द वीडियो यू वांट, सर्च की बार जो होती है उसमें सर्च कीजिए, फिर उसके बाद एक फिल्टर नाम का बटन दिखेगा वहाँ पे। फिल्टर में जाने के बाद हम कौन सी चीज़ चूज करेंगे, ये वाली, ये दिखेगा आपको वहाँ पे, सिलेक्ट क्रिएटिव कॉमन्स। सिलेक्ट क्रिएटिव कॉमन्स करने के बाद कुछ वीडियोस निकल जाएंगे जो क्रिएटिव कॉमन्स के थ्रू लाइसेंस्ड नहीं है, और जो बचेंगे वो सारे वीडियोस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग वाले होंगे, मतलब उनमें से कोई भी वीडियो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और उस पर्टिकुलर चूज किए हुए वीडियो का टाइप ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस जो भी होगा उसके हिसाब से उस वीडियो को आप डाउनलोड करके दिखा सकते हो, या दिखाने के साथ साथ बांट भी सकते हो, या फिर उस वीडियो को किसी और रिसोर्स के साथ कंबाइन भी कर सकते हो अगर अलाउड हो। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज या चाहे वीडियो, आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से जो भी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस्ड टेक्स्ट, वीडियोस या इमेजेस यूज कर रहे हो उसके लिए आपको ऑथर या ओरिजिनल क्रिएटर को साइट या एट्रीब्यूट करना होता है, ओके। तो फिर बात जब आती है एट्रीब्यूशन की, जैसे मैंने कोई स्लाइड डाउनलोड की, या मैंने कोई वीडियो डाउनलोड किया, या मैंने कोई टेक्स्ट डाउनलोड किया, तो वो मुझे पता है कि इस ऑथर ने लिखा है या इस ऑथर ने बनाया है, तो मैं एट्रीब्यूट कैसे करूं, है ना, या उसको क्रेडिट कैसे दूं। तो उसके लिए एक साइट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है ओपन एट्रीब्यूशन बिल्डर, ओके। व्हाट इज दिस थिंग? ओपन एट्रीब्यूशन बिल्डर, as you can see here, a tool called open attribution builder help us to produce appropriate attribution and cite the material you want। जैसे यहाँ हम जाएंगे, it will take some time, okay, so it is not connecting, so just leave it। सिर्फ देख लो आप, you just type in Google open attribution builder, okay, the site will open where you will be asked some basic information about your material। तो वो आप वहाँ पे डालोगे तो अपने आप एट्रीब्यूशन बना देगा ये, और वो एट्रीब्यूशन आप अपने रीयूज कर किए जाने वाले या यूज किए जाने वाले मटेरियल पे पेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से वो अपने आप ऑथर जो है, उस मटेरियल का ओरिजिनल ऑथर जो है वो एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स हाउ दिस टूल कॉल्ड ओपन एट्रीब्यूशन बिल्डर कैन हेल्प यू, ओके, in building the attribution for your CC licensed work that you are using, okay। That's why whenever we adopt some CC licensed work we need to attribute the original author, and for this tool called open attribution builder can help you out, clear? Now after discussing all these things about OER, okay, I think there are certain challenges related to OER. Like what challenges there are like more awareness, that means more awareness amongst faculty members, more awareness amongst students in general is needed, because OER is not a new term, it's a term that was devised in the starting part of this century, okay, but still there is not much awareness amongst us and students about OERs, okay। Then more such OERs, more useful open educational resources are need to be created, and for that no doubt more funding is needed for from governmental and non-governmental organizations, and most importantly the intent to use the open educational resources, the intent to combine them with our normal curriculum is needed. So these are certain challenges amongst OER, like more awareness, funding and
intent, right? So I hope whatever we discussed in this session, okay, I am successful in conveying the things up to you. So thank you. Stay home, stay safe.